So before alternative oxidase, let us have a recap of photoinhibition concept and electron flow in other microbes. So already we are discussing the similar to the animal, right? Animal have the TCA cycle, right? And the TCA cycle, and then electron is moving via the electron transport chain, right? And this electron transport chain, actually what it does, there is a motor. Motor name is ATP synthase. Motor name is ATP synthase, right? So this ATP synthase, what this is doing exactly? This ATP synthase is a motor. Means when the this motor is driven by the proton flux. Okay, proton flux from this lumen to stroma. But this is flowing via a channel protein, right? This is a pipe-like structure. You can say channel protein, and this is regulating the proton pump. And I was discussing yesterday that this pipe-like structure is somewhat like a ladder. Okay, सीढ़ियों की तरह होता है. तो ऐसे अगर आप देखो तो from high concentration it's moving to low concentration. Clear? This is moving to Acha, I am visual. It's very good. If I am visual. So today I have started 2 alternative recording system so that you should not miss, right? Whatever the things are there, you must get it properly. So what I am saying, this is a TC cycle. Electron is passing through ETC via this complex 1, then 2, then 3, right? Then 4, and then this is a ATP synthase. Okay, this is a large multi-segmented complex and attached to the stromal side of the membrane to an integral membrane portion. And you know the structure of mitochondria like this, highly folded structure. Okay, highly folded structure. Right, like this. You are a biologist, so you must know how to draw the diagram. So CF, there are 2 knob-like structures, CF0 and CF1, right? So this is the part of CF0 that is attached to the membrane. So you can see the structure like this. This is structure, right? Attached from the inner mitochondrial membrane, but remain inside the membrane. Okay. So this is CF0 part, which is attached, and toward the stroma. Means ये उल्टा बन गया मुझे लगता है. स्टोमा तो इधर होगा, तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए. ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, राइट? ये हो गया स्टोमा, and this is the lumen. So CF0, this is CF0, and this is CF1, and there are 5 different polypeptides attached to the CF0. What are they? You can name them. That is beta 3, alpha 3, beta 3, gamma, delta, and beta. Okay. So alpha 3 structure you can see here in the diagram. Upper diagram 1, 2, 3, 4, 5. Can you see it clearly? Yes or no?
Can you see that? You can see this is alpha, alpha, alpha. So alpha 3, then beta 3. You can see beta 1, beta 2. You must be interactive, na? So that I can understand you are not sleeping. Okay. So this is alpha 3, beta 3, and this is the gamma unit. This is the gamma single, then delta single, and eta single. Okay. So this is the complete 5 domain structure of 5 polypeptide is there made up of alpha 3, beta 3. 6 हो गया ना, 5 तो होगा नहीं, क्यों? अल्फा 3 है ना, बीटा 3 कितना हो गया? 6 और डेल्टा गामा ईटा 3 ये हो गया, तो टोटल क्या हो गया? 9 स्ट्रक्चर हो गया ना. 9 does not remain to the 5. Is it so? मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? सर मेरी आवाज. Yes sir. हाँ, तो ये गिन पा रहे हो ना? Yes sir. Yes sir. है ना? अगर आप देखो तो दिस इज एग्जैक्टली 9 स्ट्रक्चर, 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड विद स्टिक्योमेट्री. तो सिमिलर पॉलीपेप्टाइड की वजह से शायद 5 बोल रहे हैं, तो टोटल 9 से भी ज्यादा है ना. तो एक अल्फा को मान रहे हैं, देन काउंट करते चलते हैं ना, बिकॉज यही सब पूछता है एग्जाम में. अल्फा एक हो गया, देन बीटा, देन अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ईटा. तो 3 to 5, ये 5 पॉलीपेप्टाइड हो गए. डोमेन ये है कि 3 है, दिस इज 3, देन 3, देन 3, तो ये 3 हो गए, 3 3 6 3, टोटल कितना हो गया? 9. तो 5 पॉलीपेप्टाइड्स are there. Polypeptide, 5 polypeptide. Okay, clear? Clear on the screen? So CF1 attaches to the stromal side of membrane, to an integral membrane portion known as CF0. Sorry, multi-complex is the CF1, and then attaches now with CF0, CF1, 5 different polypeptide and 4 different polypeptide stability A, B, B dash, C, 12. अब अगर आप देखोगे तो CF0 में भी पॉलीपेप्टाइड है, मल्टी प्रोटीन स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे यू कैन से A, B, B dash, C1, 2. A similar to alpha, B for beta, beta dash for gamma, and C for delta. तो यहाँ 4 ही मान सकते हो, 4 ही हुआ ना, 4. स्टिक्योमेट्रिक उनका डिफरेंट हो जाता है. तो ये लैंग्वेज थोड़ा देख लेना. इफ दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स, तो आंसर विल बी हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड, आंसर विल बी 5. बट इफ दे आर आस्किंग इस एज पर स्टिक्योमेट्री, सॉरी STO ICHIO stoichiometry, it's a contain 9. Okay, so similarly as per polypeptide CF0, this is the structure of CF1, 5, and as per stoichiometry this is 9. CF0 में कितना बेटा? It's containing 4 polypeptide. और stoichiometry की बात करोगे तो it's containing 5 as per. Okay, ठीक है? Is it clear? बना लिया डायग्राम? Yes sir. आजकल ये पूछने में कोई इंटरेस्टेड नहीं कि एटीपी कहाँ बनता है. एवरीवन नोइंग एटीपी सिंथेस में बनता है. नाउ दे आर आस्किंग द मॉलिक्यूलर डिटेल. और तुम्हें बताऊं कि नीट में वो भी पूछा जाता है अल्टरनेट ऑक्सीडेज के बारे में. अल्टरनेट ऑक्सीडेज क्या है? अल्टरनेट ऑक्सीडेज के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट?
सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. आवाज ब्रेक हो रही है? आवाज ब्रेक मैं कहाँ जाऊं? एक सेकंड. अभी ठीक है थोड़ा? हाँ सर. इट्स ओके नाउ. लक्ष्मी, लक्ष्मी आज बोल नहीं रही है. लक्ष्मी, इज इट ओके? वॉइस ओके Yes बेटा? sir. Yes sir. हाँ. करो दोनों लोग. हेलो. Yes sir. Yes sir. अभी अभी क्लियर है. अभी क्लियर है? ठीक है. क्लियर है बेटे? चेक करो. हाँ सर अभी क्लियर है. माइक्रोफोन में थोड़ा. Yes sir. क्लियर है. ठीक है ना? तो दिस इज दिस ओके? अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्री दे कैन आस्क, यू कैन आंसर, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलीपेप्टाइड यू कैन आंसर. ओके. आज मेरा मोबाइल मेरे ऑफिस में छूट गया, सो आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम. अदरवाइज मेरे पास ब्लूटूथ सिस्टम होते थे. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज द फोटो प्रोटेक्शन. Photo protection means protection from light. So how the leaves are going to protect themselves? So basically they are protected by leaves are protected by carotenoids, right? Carotenoids. This is called as the photo protection. Right. So photo protection means there is a membrane or wall, right? Directly light is, अगर light आती भी है, मान लो ये leaf है, right? मैं बना दूं, so this is a sunlight. So if light is coming, so they are not directly going to burn the leaf system, because the chlorophyll is going to burn, then this is going to damage all the machinery. So machinery is protected by the carotenoid system. Okay. So carotenoids, this is part of antenna complex. Now what is the carotenoid? Carotenoid you can mention by the C. When the light is mentioned by this wavy structure, that is called as the singlet photon, right? Singlet photon. And when then there is a carotenoid, and then carotenoid become C star. C star means excited state, right? Excited state. Okay. So excited state, and when they returning again to the ground state, this is a ground state. So this is called as the quenching. This is called as the quenching. Excited transfer according to the okay. So this is called as the quenching, and this is going to act as a carotenoid, act as a safety wall. This is acting as a safety wall. Means energy dissipated. Quenching means energy loss. So directly they are not going to damage because of heat or any kind of strong light. So carotenoid exert photoprotective action by rapidly quenching. What you write? Affected by carotenoid because of rapid quenching, right? The excited state of rapid quenching, the excited state of chlorophyll. Okay, so the excited state of carotenoid, they are not as much dangerous as the excited state of chlorophyll. That's why this mechanism is very, very important. Next discussion is about the comparative electron transport mechanism. Electron mechanism in the purple bacteria, in the chloroplast, and in the mitochondria. Which you want to see first? कौन सा देखना चाहते हो? So well known structure is mitochondria, I think, right? Well known structure is Yes sir. mitochondria. So you want to see this, okay? So already you might be knowing what is exactly happening in the mitochondrial matrix, how they are producing the ATP. So as we were discussing, we can continue here.
So now you can see the matrix, mitochondrial matrix. This is the intermembrane space, and this is the ATP synthase. As we were discussing, this is the stroma site, right? This is the, I'm correct or not? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Stroma, right? Stroma. A lot of proton is there. Okay. So whenever the electron is going to transfer, right, it's because of the splitting of water, a lot of proton is going to be collected in the stroma, and then what you can see, they should be pumped here in the matrix. Okay, but there is no pores. Here you can see pore, no. There is a pore, no. सर ये ल्यूमेन है क्या? Pardon? क्या बेटा? सर स्ट्रोमा सर प्रोटॉन कंसंट्रेशन तो ल्यूमेन में ज्यादा होता है. हाँ, वही मैं कह रहा था, ये स्ट्रोमा है ना, मैट्रिक्स स्ट्रोमा है, ये है ल्यूमेन. हाँ, ठीक है ना, ये है ल्यूमेन. स्ट्रोमा, ये है ल्यूमेन. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यहीं पर होगा. ये मैट्रिक्स अंदर का पार्ट हो जाएगा, तो इसलिए स्ट्रोमा है, ये अंदर का पार्ट, ये बाहर का आउटर. इनर के बीच में जो स्पेस है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है. आउटर के बीच में जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. यहीं पे तो CF0 था, F0 जिसको F0F1 यहाँ पे कहते हो, और F0F1 यहाँ पे CF0 CF1 कहते हो, राइट. सो मैकेनिज्म इज सेम. व्हाट यू कैन सी, दिस इज NADH dehydrogenase, cytochrome B1 BCL complex, cytochrome oxidase, है ना. फिर यहाँ पे ये रास्ता देता है via cytochrome C, and the electron is moving to cytochrome oxidase. There is splitting of water, है ना. हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था how much oxygen is required बेटा. सॉरी ऑक्सीजन टू H2O बन रहा है, ऑक्सीजन स्प्लिटिंग तो कहीं और हो रहा है. तो वो हमने बात करी थी कि हाँ, वाटर विल स्प्लिट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. कितना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल? 4 चाहिए, राइट. 2 चाहिए, 2H2 मॉलिक्यूल चाहिए ना सर. 2H2 मॉलिक्यूल. हाँ बोलो सर. आप फ्रीज हो गए थे. फ्रीज हो गए थे लक्ष्मी? यू आर फीलिंग सेम? नहीं सर, आवाज तो सही आ रही है. वीडियो का वीडियो बंद, हाँ वीडियो बंद कर देते हैं, अभी ठीक हो जाएगा. अभी ठीक है. वीडियो स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम होती है ना कोई. अभी ठीक है बेटा? हाँ सर. ओके चलो. सो अभी ओके होगा, है ना. कैन वी कंटिन्यू? वॉइस क्लियरिटी इज देयर? यस सर. हाँ, नाउ इट्स ओके आई थिंक. हाय विपांची, यस ओके. यस सर. Thank you. So what we can see, now you can see very clearly that what I want to convey message. The message is that there is a splitting of water, right? And because of this splitting of water, what is happening? 2 molecules of water and then 1 molecule of oxygen is produced, and 4 proton is there. You can see the concentration is very high inside the lumen. Okay, lumen side. Okay. And here comparative, yes, this is very good question. Compared to the NADH dehydrogenase, which system is there in the chloroplast ATP synthase or machinery, right? So this is NADH dehydrogenase is there, which is oxidizing NADH to NAD plus, so releasing hydrogen. Here you can say because of light, PS second center. There is a splitting of water to oxygen and hydrogen, right? So 4 hydrogen is released here. So now the electron is passing via Q. I have told you that connecting to PS1 and PS2 is this. This is the cytochrome B6F complex via Q. This is connected. PS second, how connected to the PS1? This is connected by Q and cytochrome B6F complex, and also PC. तो Q और PC के बीच में कौन है? साइटोक्रोम B6F. ठीक है ना. जैसे आजकल बिग बॉस में काफी झगड़ा हो रहा है, एक लड़का है, 2 लड़कियां आपस में लड़ रही है उसके लिए.
वो हमारा है, वो हमारा। सिमिलरली यू कैन रिमेम्बर दिस, क्यू एंड पीसी के बीच में क्या है, साइटोक्रोम B6F। तो भूलेगा नहीं, 3 सिस्टम इज देयर, क्यू, साइटोक्रोम B6F एंड इसको आप कह लो BF। BF के लिए हो रही है लड़ाई, किसमें, क्यू में और पीसी में, राइट। So this is the connecting center of PS1 and PS2. PS2 is the receiving end of the light, splitting of water, and here you can see hydrogen is released not because of the water splitting, rather than the NADH oxidation by the NADH hydrogen. Then system is the same almost, you can see, right? What similarity you can see here? Tell me, what similarity you can see here? Tell me, Vita, Lakshmi. This is same, cytochrome B6F same, this is BC1. The Q is here, you can see the Q here. छोटे बच्चों, हम लोग क्लास 5th में थे ना, तो कार्टून की किताबें आती थी, उसमें मैच कराना होता था। हाँ, डिफरेंस जानवर, जंगल, बहुत ढेर सारे जीव होते थे, उसमें कौन सा डिफरेंस है। तो ऐसे CSR में क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। पीसी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी पीसी नहीं है, साइटोक्रोम सी है। तो कंपैरेटिवली यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना, साइटोक्रोम एज कंपेयर टू पीसी, दिस इज ए cytochrome C. As compared to PS second, this is a NADH hydrogenase, right? And Q is not changing. Q is not changing. Only change in the PC और यहाँ पे B6F नाम है, तो यहाँ पे BC1 नाम है, ठीक है ना। एंड नंबर अगर काउंट करोगे तो सेम ही, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 है। यहाँ पे CF0 हम बोलते हैं, CF1 बोलते हैं। यहाँ पे काम, नाम वही है, नाम भी वही है और काम भी सेम है, नेम एंड केम नेम एंड केम इज सेम। Okay, so this is ATP synthase, and ATP synthase main function is to ATP synthesis. So this is ATP synthase. Now you can comparatively you can remember by the diagram. अगर मैं बहुत सारा लिख के पढ़ देता तो तुम्हें समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है ना, कहाँ पे एग्जैक्टली सिचुएशन है ना। तो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। मेक द डायग्राम, ड्रा द 2 पैरेलल लाइन, ठीक है ना। एक लाइन बनाओ फटाफट, ऐसे कॉपी में मेरे सामने अभी बनाओ, ठीक है ना। यहाँ पे फटाफट डिफरेंसेस लिख डालो। डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे होगा PS सेकंड का सर्किल बना लो, ठीक है। PS सेकंड से बाहर निकलेगा Q, फिर Q से आ जाएगा प्रोटॉन, ठीक है ना। अब उसको कनेक्टिंग कौन से कर रहा है, एक और प्रोटीन जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F। फिर इससे PC से कनेक्ट हो रहा है, PC कनेक्ट हो रहा है PS1 से, हाँ जी, PS1 से। तो PS1 में तो लाइट रिएक्शन है नहीं, लाइट का प्रोडक्ट है, दैट इज NADP2 NADPH। यहाँ पे NADPH नहीं है, यहाँ पे क्या है, एनिमल्स में NADH2 NAD शुरू में ही आ जाता है, ये लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि PS1 जो रिएक्शन सेंटर है वो यूटिलाइज कर रहा है इस एनर्जी को, है ना, इस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। जबकि यहाँ पे देखो रिवर्स रिएक्शन हो रही है, और जो भी प्रोटॉन एक्सेसिव में है, विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज दे आर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द वाटर, ठीक है ना, वाटर में कन्वर्ट हो गया अगेन। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहीं से एक अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का जन्म हुआ, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का, क्योंकि ऑक्सीडेज यहाँ पे नहीं पाओगे प्लांट्स में, यू कैन नॉट सी द ऑक्सीडेज सिस्टम। वेरी सिंपल, दिस इज PS सेकंड रिएक्शन सेंटर, साइटोक्रोम B6F, PS1 रिएक्शन सेंटर, ओके। बट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहाँ पे, NADH डिहाइड्रेज, BC कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज द लास्ट वन। ये पूछा हुआ एग्जामिनेशन में कि लास्ट वन कौन सा एनिमल में और लास्ट वन प्लांट में कौन सा, बिफोर द ATP सिंथेज। लास्ट वन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है यहाँ पे, एंड इन द प्लांट दिस इज अ रिएक्शन सेंटर PS1। तो हमने बताया था PS1 और PS2 के, PS2 और PS1 का नाम हमेशा लेना है, PS2 फर्स्ट एंड देन PS1। कनेक्टिंग इज QPC, बीच में BF, यहाँ पे है Q, PC नहीं है, साइटोक्रोम C है, ठीक है। 2 बार साइटोक्रोम का नाम आ जाता है एनिमल में, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम O। साइटोक्रोम O मतलब ऑक्सीडेज, है ना, साइट C साइट O, साइटो, ओके। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये
काफी टेंस एनवायरनमेंट होता है, तो सी वेरी स्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन कह सकते हैं एक तरीके से, कि लगातार मतलब काम हो रहा है। जैसे आप भी लगातार काम, कोरोना में देखो कि स्टूडेंट लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, टीचर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं ना। तो काम क्यों ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि बाहर निकल रहे हैं तो कुछ प्रॉस्पेक्ट्स पता नहीं चल रहा है कि क्या फ्यूचर होने वाला है ना। तो कहीं वो पीछे ना हो जाए, क्योंकि कोरोना ने 2 साल तो माइनस कर दिया लाइफ का, है ना। मैक्सिमम लोगों की लाइफ 2 साल, दीपांशी तो चलो स्टडी कंटिन्यू करती रही है ना, उसका कोर्स चलता रहा, बट बहुत सारे लोग तो घर पे बैठे रहे और उनकी एज का -2 हो गया माइनस नहीं, +2 हो गया, मतलब जितनी एज थी उससे ज्यादा होगी 2 साल। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हुई। तो इसी तरीके से यू कैन सी, यू कैन विजुअलाइज दीज थिंग्स। ओके, नाउ यू कैन सी कंपैरेटिव विद द पर्पल बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया के साथ देख लें। अब ये मैं नहीं देखूंगा, ये आप मुझे बताओगे, राइट। ये ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने 2 दिखा दिया आपको। व्हाट इज द डिफरेंस? नोट कर लिया ना, नोट करते रहो बेटा, ये चीजें ना भूल जाती है, फिर कॉपी में फटाफट नोट करना है। कैसे नोट करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फटाक से डायग्राम बनाना है, अगर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो राइट इन द वर्ड, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल रहेगा ही, बट वो टाइम आपको शायद ना मिले। ठीक है बच्चा, है जी। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्पल बैक्टीरिया। यस सर। हाँ, अब अगेन यू कैन सी, अब तो आपको याद हो गया है ना, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज यहाँ पे है नहीं। Very simple system, purple bacteria as the name suggests, and this is purple bacteria means photobacteria system, है ना, utilizing the light. So again this is reaction center, very simple reaction center, है ना। ये पूछा हुआ है कि ये किसकी तरह होता है, रिएक्शन सेंटर PS1 की तरह है या PS2 की तरह है। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट, पर्पल बैक्टीरिया में जो रिएक्शन सेंटर है ना, PS1 की तरह है या PS2 की तरह है, सिमिलर टू। बताओ, लेट मी चेक योर नॉलेज। सर 2 की तरह है। सर 2 की तरह है, PS2। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 की तरह होगा। लाइट रिसीविंग एंड ना, रिसीविंग हमने हमेशा कहा है, याद करो, ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद द 2। तो नेचर ने क्या किया, आधा एनिमल का डाल दिया, है ना। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज तो है नहीं, सॉरी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नहीं है, बट वो गायब कर दिया वहां से। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कोई सिस्टम नहीं है तो हाउ दे आर जनरेटिंग द एटीपी, है ना। तो इनका ज्यादा चक्करबाजी नहीं है, यू कैन सी वेरी सिस्टम, ये साइकिल यहीं पे बन जा रही है। वहां पे साइकिल बन नहीं रही थी, यहाँ पे प्रोसीड हो रही थी ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ये प्रोसीड नहीं हो रही, यहीं पे साइकिल हो रही है बिटवीन द साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्शन सेंटर। तो Q एंड साइटोक्रोम C, है ना, दे आर कनेक्टेड विद द रिएक्शन सेंटर PS2। ओके, तो PS2 में ही हो रहा है सारा कहानी। एंड देन यू कैन सी द प्रोटॉन इज पम्प्ड टू द F0 एंड F1 एंड ATP is produced by the ATP synthase system. So this is a comparative anatomical structure with their functional detail, right? So अब ये सब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो मैंने साथ में डाल दिया है। कई बार आदमी पढ़ने का इंटरेस्टेड होता है कि, है ना, आई वांट टू स्टडी कि क्या लिखा है ना। तो देन यू कैन सी ऑल द इंफॉर्मेशन इज हियर। क्योंकि हमेशा पीपीटी पढ़ते समय टाइम पे यही रहेगा, मैं तो हाउ द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो occurs in the purple bacteria with the help of reaction center Q, cytochrome BC1, cytochrome C। तो ये पाथवे बल्कि लिख लो, Q साइटोक्रोम BC1 लिखने से क्या होगा ना कि मिस्टेक नहीं करोगे एग्जाम। साइटोक्रोम, तुम्हारे पास वो पेपर है बेटा डीबीटी वाला दीपांशी? वो पेपर तुम्हें मिला ही होगा। सर पेपर नहीं है। अच्छा, वो ऑनलाइन हुआ नहीं मिला, रेस्पॉन्स शीट नहीं मिला, वो ऑनलाइन हुआ था। स्कोर कार्ड। अच्छा, ठीक है ना। साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम C, ये देखो कितना लिखने से ना अच्छा हो जाता है कि आप डॉट लिख दो, दिमाग में क्या होगा, Q के बाद साइटोक्रोम C लगा, है ना। क्योंकि जबकि हमने ये बताया है बार बार कि 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का है, तो ऐसे याद करता, साइटोक्रोम C यहाँ पे होना चाहिए था,
और बीच में कौन आएगा, BC1, यहाँ पे BC1 है, यहाँ पे BF है, यहाँ पे अगेन BC1 है, तो BC1 लाइज इन बिटवीन द Q एंड साइटोक्रोम C। यहाँ पे साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C लेकिन यहीं पे कनेक्ट हो जा रहा है, जबकि और जगह कनेक्टेड नहीं है। तो ये बेनिफिट है एडवांसमेंट का। माइटोकॉन्ड्रिया हैव मोर फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स, मोर स्पेस, क्लोरोप्लास्ट में भी सिमिलर थिंग्स है, but purple bacteria have limited space, so that's why they have to recycle the electron between Q, cytochrome BC1, cytochrome C, and then again reaction center. Okay, so this is called the electron flow. Okay, so all the electron flow is coupled to proton transfer-based, creating transmembrane protein motive force, and the energy in the proton motive force is then used for the ATP synthesis. Right. So reaction center in purple photosynthetic bacteria carry out the cyclic electron flow, generating a proton potential by the action of the cytochrome BC1 complex. Chloroplasts carry out non-cyclic electron flow, oxidizing water and reducing energy. Protons are produced by the oxidation of water and by the oxidation of aqueous by the cytochrome B1 6F complex. Mitochondria oxidize NADH to NAD plus and reduce oxygen to water. Proton are formed by the enzyme reduced dehydrogenase, cytochrome BC1 complex, cytochrome oxidase, and ATP synthase. The three systems are very, very similar. Okay. So now what next? I think these two slides are very clear. Yes, sir. म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म बात कर ले। अगर मान लो एक ऐसा म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म हो that leaf, समझ लो ऐसी लीफ है, that no carotenoids is there, या carotenoid mutant is there, what will happen? सर क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाएगा। हाँ, why chloroplast will damage? Because ये अम्ब्रेला था, है ना। कैसे प्रोटेक्ट करता था अभी तक ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये जरूर पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ फोटोप्रोटेक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन द लीव्स। तो आपने बता दिया कैरोटिनॉइड, बट कैरोटिनॉइड कैसे करता है तो ऑलरेडी यू नो, बाय क्वेंचिंग, टेल मी द एग्जैक्ट वर्ड, बाय क्वेंचिंग एक्साइटेड क्लोरोफिल, राइट, एक्साइटेड क्लोरोफिल। एनर्जी लॉस होता है। क्वेंचिंग मतलब आपको समझ में आ गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएगा क्लोरोफिल, एंड देन इसका काम है कूलिंग का काम करना। दिस इज टाइप ऑफ वेंट। जैसे आप किचन में क्या करते हो, किचन में आप आग तो बुझाओगे नहीं, खाना ही नहीं बनेगा फिर, तो वो तो आप नहीं करोगे, तो फिर क्या करते हो, एग्जॉस्ट लगाते हो। तो क्वेंचिंग मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम, वॉल्व एक तरह से कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि पूरा पूरा एक्साइटेड स्टेट, देयर इज ए लॉस ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। सिमिलरली जैंथोफिल कुछ में, सम जैंथोफिल, है ना। दिस इज कॉल्ड द नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। This is a major process regulating the delivery of excitation energy to the reaction center, can be thought of as a volume knob that adjusts the flow of energy. Okay, तो ये वेंट का काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि एज ए फोटोप्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कैरोटिनॉइड एक्टिंग एज ए मैचिंग कराओ, कैरोटिनॉइड एक्टिंग एज ए वॉल्व एंड जैंथोफिल एक्टिंग एज ए नॉब। जैसे पंखे का क्या है, पंखा यहाँ पे तुम्हारा स्विच ऑन ऑफ है, बट एक रेगुलेटर होता है, इससे कनेक्टेड है तुम्हारा फैन। हमारे घर में फैन ऐसे है ठीक है। तो फैन की स्पीड को कौन रेगुलेट कर रहा है, ये रेगुलेटर, इसको कहते हैं नॉब ना, ठीक है ना। तो ये काम कर रहा है जैंथोफिल। ओके, ये काम कर रहा है जैंथोफिल, वॉल्यूम नॉब, बट ये वॉल्व का काम कर रहा है, एग्जॉस्ट का काम कर रहा है। जैसे प्रेशर कुकर में क्या करते हो, ये ममता दीदी का प्रेशर कुकर है और ये लगी है सीटी। जब ज्यादा है ना, क्या करते इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, वॉल्व इज
रिलीजिंग इनसाइड प्रेशर, जो हीट है वो निकल जाता है. So there are two functions. Keratinoid acting as a, tell me, keratinoid acting as a valve, acting as a exhaust. Xanthophyll acting as a Like knob. knob. Is it clear? Now you can see photon intensity, photon is for photosynthesis, excess photon. This is the first line of defense by the, किसके द्वारा हो रहा है? Excess photon is there, then this is the quenching. This is called as the quenching, heat loss. This is the first line of defense suppression mechanism. ठीक है ना. टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज, फोटो प्रोडक्ट, टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट. इसका नाम जरूर पूछ सकते हैं. कितने तरह के होते हैं, काउंट कर लो. 1 2 3 4 एंड 5. फर्स्ट का नाम है ट्रिपलेट क्लोरोफिल, है ना. बहुत तेज है ट्रिपलेट क्लोरोफिल. ट्रिपलेट 3 लिखोगे, सॉरी क्लोरोफिल 3. सुपर ऑक्साइड, है ना. सिंगलेट ऑक्सीजन, सिंगलेट ऑक्सीजन को कैसे दिखाओगे, 1O2 स्टार, 1O2. 1O2 का मतलब सिंगलेट, सिर्फ O2 रहेगा तो W2. सिंगलेट को ऑलवेज दिखाएंगे 1O2 स्टार. देन फोर्थ वन इज H2O2, देन फिफ्थ वन इज हाइड्रोजन. सोचो कितना ज्यादा टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट निकल रही है. तो अब ये जो टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट है, अगर इसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं आया तो इसको बोल रहे हो कैरेटिनॉइड. करे पहला तो है कि क्वेंचिंग होगी, दूसरा है ये पूछ सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कैरेटिनॉइड या सेकेंड है. तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, क्वेंचिंग इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ओके. ऐसी बातें कोई आपको बताया होगा पहले? मुझे तो नहीं लगता किसी ने ऐसे डिस्कस किया. बैठो पढ़ो, ये लाइन है, ये लाइन है, किस चीज है बेटा, सच्चाई से बोलना. कैरेटिनॉइड, सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेस, बोलो बोलो. किसी ने बताया पहले ऐसे? आवाज ही नहीं आ रही क्या? नो सर. Are you getting voice? यस सर, आवाज आ रही है. हेलो. ओहो अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो, मेरे तक आवाज नहीं है. इसीलिए मैं चेक करता रहता हूँ ना बीच में. क्या वो मैंने वॉइस थोड़ा चेक कर. हाँ तुम लोग, अच्छा अच्छा बीच में गया. अभी ठीक है. अरे मेरे भाई कर दिया. हेलो. अभी ठीक है बच्चे, आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही. ठीक है अभी आवाज आ रही है, चेक करो, बोलो जरा. हेलो. चली गई. बोलो बच्चों, कुछ बात करते रहा करो ना, मुझे आइडिया हो जाता है. ये बताया था किसी ने पहले, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन क्वेंचिंग, देन सेकंड लाइन मार्क कर लो. नो सर. सेकंड लाइन डिफेंस कैरेटिनॉइड, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एस्कॉर्बेट. लक्ष्मी पता था ये बात पहले से आपको? टेल मी. नहीं पता था ना? अभी भी आवाज नहीं आ रही. मुझे चेंज करना पड़ेगा बच्चों, सम प्रॉब्लम देयर. हेलो. अभी ठीक है. हाँ अभी कुछ बोलो तुम लोग, मुझे आवाज समझ में आ जाए.
सर हाँ अभी आ जाएगी। पहले आपको पता था ये सारा चीज? सर नो, हाँ तो ये देखो मुझे ये तो नो सर। हाँ डिस्कवरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ऐसे डिस्कस किया जाए। क्या करेंगे, सारा ढेर सारा डिस्कस करके जो दिमाग में फिल्टर ना हो। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इनहिबिशन। ओके, फोटो इनहिबिशन मतलब intensity of light is very high. So because photon must be there for the photosynthesis, but what about this is the useful, but this is a wasteful process, right? Wasteful process इसलिए जरूरी है because this is going to damage PS सेकेंड। अब यहाँ पे CSR ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि इन द फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ कैरेटिनॉइड व्हिच प्रोटीन इज देयर। लिख लो, इन फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बाय कैरेटिनॉइड, सीधे सीधे नाम दिया था। Which protein actually involved is involved in protection to PS second. Option is D1, D2, D3, ऐसे ही D3 D4 नाम है, होता तो D1 D2 प्रोटीन ही है। तो इसमें कौन सा है आंसर करेक्ट? D1. D1. If D1 is damaged of this carotenoid system, then this carotenoid has lost its ability to protect PS second. ये समझ लो, ये गया तो गया। तो लॉस को बचाने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं D1, right? And then that's way of photo inhibition. This is the good way of photo inhibition. तो ये एक एक स्लाइड देख रहे हो ना, कितने माइन्यूट डिटेल में जाके हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नीड, भगाते फटाफट, ऐसे नहीं करते, राइट? बिकॉज नॉलेज इज समवॉट दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड आल्सो कनेक्टिंग टू योर ब्रेन। फोटो इनहिबिशन तो हमने भी पढ़ी है, लेकिन खुद मुझे नहीं समझ में आया कभी लाइफ में, राइट? फोटो इनहिबिशन इज actually inhibition of excessive light with the help of D1, and in this process D1 either get damaged. So if they are damaged, then also they get repaired, and also there is mechanism of de novo synthesis, or if they are oxidized, then also they have the reversal mechanism to protect themselves. And not only the part of second line of defense is the carotenoid, but other system is there. One, superoxide dismutase, and second is ascorbate beside the carotenoid. There are three systems. One, carotenoid, second, superoxide dismutase, and third one is the ascorbate. तीन सिस्टम लेके चलता है, क्योंकि कितने कंपोनेंट प्रोड्यूसर है टॉक्सिक कंपोनेंट? दिस इज 5 टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। समझे बेटा? 5 टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? Yes sir. 5 तरह के हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, quenching excessive protons as a heat, then नहीं माना तो फिर लो भाई, फर्स्ट सिक्योरिटी गार्ड से पहले गेट होगा, गेट के बाद सिक्योरिटी गार्ड होगा, है ना? ऐसे फिर सिक्योरिटी गार्ड के बाद एक कुत्ता रख दिया, ऐसे याद कर लो। पहला सिस्टम क्या है? गेट। गेट से एंट्री नहीं होगी ज्यादातर बदमाशों की, ठीक? दूसरा क्या है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में? बोलो, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया? प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के अलावा क्या है? एक डॉग है, D1। D1 को कैसे याद रखोगे? डॉग, है ना? तो डॉग इतना जबरदस्त है, एक डॉग नहीं, कई डॉग इतना जबरदस्त, इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। तो इन दिस वे घर में चोरी होने से बच गए।
You got the concept? Gate मतलब quenching, and then security guard means carotenoid, right? Superoxide dismutase, ascorbate, 3 dog है, right? And then क्या है? नेक्स्ट क्या होता है? डॉग हो गया, डॉग से ही सारा काम हो गया. I think this is remembered triplet chlorophyll, superoxide dismutase, superoxide. हाँ ठीक है ना. सिग्नेट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सी रेडिकल. अब समय इतना कम होता है ना कि मैं भी मतलब बहुत सारी बातें डिस्कस नहीं कर पाता हूँ. तो but 3 carotenoids are there called xanthophyll. 3 carotenoids called xanthophyll are involved in non-photochemical quenching. ये देख लो, xanthophyll involved in non-photochemical quenching. कैसे? वाया 2 स्ट्रक्चर बना हुआ है, वायोलाजेंथिन एंड एंथेरोजेंथिन. वायोलाजेंथिन, वायोलाजेंथिन, ठीक है. वायोलाजेंथिन एंड क्या नाम है लिखो? एंथराजेंथिन. मंथराजेंथिन. एंथराजेंथिन, मंथराजेंथिन, वायोलाजेंथिन. तो दिस इज द कॉल्ड एज द नॉन photochemical quenching. Non photochemical quenching. इसका क्या मतलब है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग का? इसका एक्चुअल में ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ चेंज इन द पीएच. लाइट होती है तो फोटोकेमिकल चेंजिंग कहते हैं. नॉन फोटोकेमिकल चेंजिंग मतलब चेंज इन द पीएच. Change in pH causes this biochemical change in the structure of xanthophyll. Xanthophyll कन्वर्ट होता है वायोलाजेंथिन में, फिर एंथराजेंथिन में. ठीक है. हाईलाइट वायोलाजेंथिन इज कन्वर्टेड टू जियाजेंथिन. अगर लाइट ये ज्यादा हो गई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जियाजेंथिन वाया एंथेरोजेंथिन. तो एंथेरोजेंथिन कन्वर्ट हो जाएगा जियाजेंथिन. ये लो लाइट है, लो लाइट में वायोलाजेंथिन एंथेरोजेंथिन तो रुकेगा और ये हाई लाइट में चला जाएगा. हाई लाइट में एंथेरोजेंथिन कन्वर्ट हो जाएगा जियाजेंथिन. लो लाइट. This is a conformational change that leads to quenching or heat dissipation. Quenching means conformational change. Loss of heat due to conformational change. Loss of heat due to quenching मतलब लिख लो. पूछो कि बहुत ही कम लोग बता पाएंगे आपको quenching का मतलब. Quenching मतलब loss of heat due to conformational change. Loss of heat due to conformational change. ठीक है बच्चा. सर हाईलाइट में वायोलाजेंथिन. अब ये देख सकते हो पूरी डायग्राम, पूरा स्ट्रक्चर है ना. सर लो लाइट में वायोलाजेंथिन फॉर्म होता है. क्या बोल रहे हो? सर लो लाइट में हाँ, वायोलाजेंथिन टू वायोलाजेंथिन. अच्छा सर हाईलाइट में जियाजेंथिन. एंथराजेंथिन टू जियाजेंथिन. इसका शॉर्टकट बना सकते हो VAZ. वाइस. हाँ यस सर. वायला टू
एंथेरा एंथेराटोजिया। इसको ऐसे भी बना सकते गाने के रूप में, विया एंथिया जिया। विया एंथिया जिया, विया एंथिरा जिया। और देखो मुझे डर था लाइट में करते, रुको एक सेकंड। जिससे डरते थे वही बात। हाँ जी ठीक है। अभी समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट, लो लाइट हाईलाइट वाला। ठीक है बच्चों। यस सर। चले नेक्स्ट। यस सर। तो हमने वहां कहा था D1 डैमेज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है D2 डैमेज होता है। ठीक है, तो PS सेकंड के पास D2 होता है, ये ध्यान रखना। वो तो कैरेटिनॉइड की बात कर रहे थे ना, D1 की बात। ठीक है, बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, यस सर। तो ये चीज नोट कर लो कि अलग अलग सिस्टम है। D2 मेनली डैमेज इन द PS सेकेंड। तो अगर मान लो ये पूछा जाए क्वेश्चन कि सपोज हाईलाइट पड़ गया और कैरेटिनॉइड एब्सेंट, पहले PS1 डैमेज हो गया, PS सेकेंड। सो फर्स्ट PS सेकेंड विल डैमेज, क्योंकि बार बार इसका नाम पहले लेते हैं। PS सेकेंड विल डैमेज first before PS1, and mainly its D2 protein is going to damage. So photoinhibition is not a simple process. This is a complex set of molecular process. Right? Complex set of molecular process defined as inhibition of photosynthesis. Inhibition of photosynthesis by excess light. लिख लो, photoinhibition means inhibition of photosynthesis by excess light. ठीक है, excess light. ओके, जब फोटोसिंथेटिक apparatus ही पूरा डैमेज हो जाएगा, then it's possibility that photosynthesis will be inhibited because of excess light. That is called the photoinhibition. अब ये क्वेश्चन एक नया है. Read the question कि PS second and PS1 if exposed to high oxygen concentration, so which is going to damage first? है ना? And which one is protective? What system is there to protect themselves? So superoxide dismutase and ascorbate peroxide is say PS1. Okay, say PS1. So mostly PS1 is highly vulnerable to damage. With a high concentration, PS1 may damage first. ठीक है, तो वहां पे फेराडॉक्सिन बड़ा हेल्प करता है. FD क्या करता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू superoxide, right, O2 minus, and this reduction competes with the normal channeling of electron to the reduction of NDP plus another process, and superoxide here works very well, right? So whatever the active oxygen, this is called as the active oxygen. तो यहाँ पे this is eliminated by what? Superoxide dismutase. इसको कहते हैं SOD, sorry, superoxide dismutase, SOD. SOD is neutralizing this active oxygen. This is active oxygen is called as the superoxide, which is very damaging to PS1. PS1 को destroy करते हैं, right?
ठीक है, क्लियर? So why thylakoid stacking is beneficial? In low light helps in maintaining photosynthesis. While quantum wind of photosynthesis is nearly independent of wavelength, strongly suggests that such a mechanism exists. Okay, तो अगर लो लाइट में फोटोसिंथेसिस करनी है तो थैलेकॉइड की स्टैकिंग ही, थैलेकॉइड स्टैकिंग समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? ऐसे ऐसे होती है ना, पाइलअप जितना ज्यादा पाइलअप होगी वो बताता है कि इवन दे कैन मेंटेन फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी नॉट लो। जैसे सोलर पैनल होता है, तो अगर एक ही सोलर पैनल रहेगा तो है ना बिजली कम बनेगी, ढेर सारे सोलर पैनल पाइलअप है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी सेम। इसी तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर मेंटेनिंग सेम बिकॉज ऑफ stacking behavior. Got the point? ठीक है, क्लियर बेटा? यस सर। नोट कर लिया, नोट कर लिया। Maintain the rate of photosynthesis. Antenna pigment LHC second act as a switch. अभी आज मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था, इसका देखा था आपका? क्वेश्चन इसमें डाला था कि काइनेज का क्या रोल है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रेडियोएक्टिव एटीपी के साथ। तो रेडियोएक्टिव एटीपी तो इन्वॉल्व ही नहीं होती। एंटीना पिगमेंट एलएचसी सेकेंड एक्ट एज ए स्विच, मॉलिक्यूलर स्विच। हाउ दे आर एक्टिंग एज मॉलिक्यूलर स्विच? क्योंकि काइनेज इज एक्टिवेटेड है ना। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन लिख लो, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन काइनेज। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम है दैट फॉस्फोरिलेट एलएचसी सेकेंड। यहाँ पे फॉस्फोलेट कैसे लिखा होगा? पी, प्रोटीन काइनेज फॉस्फोरिलेशन होगा, राइट? Thylakoid membrane contain this protein kinase. इसे रेड से दिखा दो, विजुलाइज करके ना डायग्राम इमीडिएटली बनाया दो। अभी काफी तुम लोग ना सीख रहे हो, ठीक है बच्चों? राइट? यस सर। हाँ, तो ये डायग्राम इमीडिएटली बनाओगे विजुलाइज करके तो आपके दिमाग में रहेगा। याद करने के इससे अच्छा तरीका कोई नहीं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से प्रोटीन काइनेज का काम क्या है? फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन हो गया। अब क्या होगा? नाउ दिस इज एलएचसी सेकेंड का काम क्या है? एनर्जी डिलीवरी। तो एनर्जी डिलीवरी टू पीएस सेकेंड। अच्छा, एंटीना कॉम्प्लेक्स है ना। ऐसे सेकेंड क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स है। तो एंटीना का मतलब क्या है? डीएसटीवी तुम्हारी चल रही है। डीएसटीवी एंटीना से पकड़ा तो नीचे आ गई टीवी में। अगर बादल हो गए तो एंटीना ने काम करना बंद कर दिया। इसी तरह से फॉस्फोरिलेशन अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? लो एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन अगर फॉस्फोरिलेशन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? हाई एनर्जी ट्रांसफर टू पीएस। इसका रोल क्लियर हो गया है ना? तो स्टैकिंग जो होती है यहाँ पे, वही मैं बात वही कर रहा था। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रोटीन काइनेज होती है, तो जितना ज्यादा स्टैकिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा? पीके। कितनी है स्टैकिंग? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने हो गए? 6 पीके। 6 टाइम एनर्जी ट्रांसफर होगी इन द लो लाइट कंडीशन। वो रेट मेंटेन। ज्यादा हाईलाइट होगी तो फोटो इनिबिशन होगा, डैमेज है ना। लो लाइट है तो लो लाइट में भी तो पूछ सकते हैं कि लो लाइट में चलो बताओ कैसे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ज्यादातर बच्चों को तो बस इतना पता है कि लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है। हाई लाइट होगी तो फोटो इनिबिशन होगा, लो लाइट होगी तो भाई दूसरा सिस्टम काम करेगा। इसमें प्रोटीन काइनेज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, है? अब इसमें एक और चीज भी हेल्प करती है,
तीसरे में लिखा काइनेस वर्क इज फास्फोराइलेशन ऑफ व्हाट, LHC सेकेंड, दिस इज एक्टिंग एज ए स्विच, है ना, और मोर एनर्जी टू PS1, ज्यादा एनर्जी देते हैं। ये फास्फोरिलेशन खत्म कर दो तो हाईलाइट होती है, तो फास्फोरिलेशन खत्म हो जाता है। तो हो सकता है आपका एक ही थायरॉइड मेम्ब्रेन का अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन भी काम करे अच्छे से। तो आप देखो लो लाइट एरिया में, कल बात ही हो रही थी कि माउंटेन पे, है ना, समुद्र के किनारे या ऐसी जगह पे जहाँ की काफी लाइट कम है, पूरे साल ठंडी पड़ रही है ना, तो वहां पे ये सिस्टम अच्छा काम करेगा, प्रोटीन काइनेज। Phosphorylated LHC second then migrates out of the stacked region of the membrane into the unstacked region, probably because of repulsion interaction with negative charges on adjacent group. PS second movement कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये plastic when accumulates when PS second being activated more frequently than PS1, तो ये मूव नहीं करेगा, मेम्ब्रेन का पार्ट है PS second PS1। LHC second मूव कर सकता है, plastic when मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो, दिस इज ए मूवेबल। और PS सेकंड PS1 क्या है, ये है फिक्स। LHC सेकंड मूव कर सकता है एंड PQ मूव कर सकता है, प्लास्टिक में। ठीक है बेटा, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया स्लाइड? एनी मोर एक्सप्लेनेशन यू नीड? सर ये लास्ट में आपने क्या मूवेबल एंड फिक्स, ये मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पत्ती है, लीफ, ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि भाई क्या है, PS सेकंड है, फिर आपने देखा PS1 है, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड है ना स्ट्रक्चर, PS सेकंड है PS1, है ना। तो मैंने बीच में बताया था टोटल तो 4 ही सिस्टम होने हैं, ठीक है। ये लाइट आई तो PS सेकंड ने वाटर को ब्रेक किया तो प्रोटॉन चार्ज रिलीज हो रहा था, यही सिस्टम बताया ना। तो ये मेम्ब्रेन से फिक्स है PS1 और PS2, ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन LHC कैरेटिनॉइड तो ऐसे ऐसे होता है डॉट डॉट स्ट्रक्चर लीफ में, तो वो साइटोप्लाज्म में है, तो वो मूव कर सकता है, यही बता रहा हूं। मूव करने का उनको बेनिफिट है, जैसे यहाँ पे दिखा है ना, रिड्यूस प्लास्टोक्विनिन एक्युमुलेट्स व्हेन PS सेकंड बीइंग एक्टिवेटेड, तो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो प्लास्टोक्विनिन ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। Phosphorylated LHC second then migrate out of the stacked region, तो LHC second अब क्या, जब एक्टिवेटेड रीजन से मूव कर जाएगा उस रीजन में जहां अनस्टैक्ड है, ताकि वहां पे वो फंक्शन कर सके। तो LHC सेकंड का फंक्शन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर। अरे जैसे आप समझ लो कि आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए 2 सिस्टम यूज करते हो, तो मेन चार्जर और दूसरा एडाप्टर बैटरी वाला, है ना। तो वो बैटरी के एडाप्टर का काम कर रहा है LHC सेकंड। तो अगर वो एडाप्टर चार्ज ना करो और मोबाइल से चार्ज हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको फास्फोरिलेशन करना पड़ता है, यानी वो उसको भी चार्ज करना पड़ेगा, तो वो आपके मोबाइल को चार्ज करेगा। तो वो हाई एनर्जी ट्रांसफर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेंटेन करने का ही मैकेनिज्म है। लाइट और हाई लाइट कभी हो सकती है, कभी लो लाइट हो सकती है, तो लो लाइट कंडीशन के लिए सारा सिस्टम बना है। हाई लाइट में तो आप जानते हो कि वो फोटो अभी डिस्कशन किया ना, फोटो इनहिबिशन कि वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे तो अलग सा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अभी समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं समझा? एंटीना पिगमेंट की बात हो रही है कि हाउ एंटीना पिगमेंट आर हेल्पिंग आउट इन मोर एनर्जी ट्रांसफर टू द PS। ओके बच्चों, क्लोरोफिल जीन होती है क्या? और जीन होती है तो किस फैशन में वो इनहेरिटेंस करती है? तो यस, क्लोरोप्लास्ट जीन भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जीन होती है, एंड ऑल दे रिप्रोड्यूस बाय division rather than by de novo synthesis. Okay, so this mode of reproduction is not new. Okay, so non-Mendelian pattern is followed. Okay, chloroplast encoded gene is non-Mendelian inheritance is followed because the offspring receive chloroplast from only one parent. है ना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस तब होगा जब दोनों पेरेंट्स मिले, है ना। जैसे मेल फीमेल से मिलता है तो जाता है भाई F1 में, तो F1 से फिर मेल फीमेल बन गए तो फिर वो इनहेरिटेंस हो गया, जीन से फैलती चली गई।
अब तालिबानियों की कौन सी चीज है, वो इन्वेडर्स रहे थे पहले, अकबर बन के आए, है ना, शाहजहां बन के आए, हुमायूं बन के आए, बहुत सारे रूपों में आए, बाबर बन के आए। अब वो अफगानिस्तान में उन्हीं के वंशज है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस है वो। मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, जैसा बाप था वैसे लड़के हैं, सारे मार्केट मचाए हुए हैं, जबकि वहाँ पूरा बालू होता है। अफगानिस्तान में क्या है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, वहाँ मतलब लाइफ बहुत ही टफ है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन मेंडेलियन, ठीक है। एग्जाम्पल लिया, नॉट फॉर क्योंकि आपको IAS की तैयारी थोड़ी नहीं कराता हूँ, आपको एग्जाम्पल दे दे के याद कराना होता है। तो बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ क्लोरोफिल कभी पूछ सकते हैं, ये पूछा भी हुआ है, व्हाट इज द मेन प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए बनता कैसे, व्हाट यू नीड, जल में क्या क्या चाहिए आपको, तो क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ग्लूटामिक एसिड, क्या चाहिए बेसिकली, यू नीड, दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ, नोट कर लो, प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल ए, ग्लूटामिक एसिड, ऐसे जीए फिर एले, एले में कन्वर्ट हो जाएगा पबजी, है ना, GALA पबजी, PP, है ना, PP फोटोप्रोफाइरिन, ठीक है, फोटोप्रोफाइरिन से आ जाएगा मोनोवाइनिल, MVPP, MVPP से बनेगा क्लोरोफिलाइडा, CL3, क्लोरोफिलाइडा एंड देन क्लोरोफिल HCl। अभी याद हो गया पूरा, क्या क्या था, आगे का स्लाइड एक बार दिखा दे, बोलो। ग्लूटामिक एसिड, अरे मेरा माइक्रोफोन, रुक जाओ भाई, हाँ अभी आ गया, बोलो, हाँ अभी बोलो, गेटिंग जी आ गया, क्या बोल रहे थे दिवांशी, यस सर, GALA फिर पबजी, जी, पबजी तो बहुत खेलते हैं ना बच्चे। GALA पबजी, फिर कर लिया है MVPB, CLD, तो मेन फिगर सीरीज ग्लूटामिक एसिड, हाँ। अब देखो तुम अभी पढ़ रहे हो, मान लो सडनली कभी एग्जाम में पूछेगा तो आपको एकदम क्लिक हो जाएगा ना, ग्लूटामिक एसिड सर ने बताया था, ऐसे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम किसी पे भी मार्क चले आओगे, है ना, मतलब गलती होनी है। तो अब अगर आप क्लोरोफिल स्ट्रक्चर देखो तो इस कंटेन फाइटोल रिंग, लॉन्ग चेन ऑफ फाइटोल रिंग, है ना, तो ये पूछ सकता है कि जो फाइटोल रिंग होती है वो किस स्टेज में एडेड होती है, दिस इज द लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 4 में वो ऐड होती है। इसके पहले तो खाली बनता है आपका पोरफायरिन स्ट्रक्चर, प्रोटोपोरफायरिन। अब पबजी का जो मेन है ना, ये क्या बना रहा है, ये याद कर लो, फोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन, पबजी का क्या काम है, प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन बन गया तो फिर फाइनली पोरफायरिन ही है। क्लोरोफिल क्या है एक्चुअली में, क्लोरोफिल अगर एनालिसिस करोगे तो दिस इज पोरफायरिन प्लस फाइटोल, लक्ष्मी और विभांची में दोस्ती हुई कि नहीं? हाँ, ये शुड बिकम क्लोरोफिल ए, है ना, वन शुड पोरफायरिन एंड फाइटोल। तो लक्ष्मी के बारे में बता दूं, लक्ष्मी पुणे में रहती है, सी बिलोंग्स टू बैंगलोर आई थिंक, है ना, सी लिव्स इन पुणे। विभांची आसाम में रहती है,
गुवाहाटी में, है ना विपांशी? यस सर। हाय लक्ष्मी। हाय विपांशी। तुम लोग जरा कैमरा ऑन करो तो मेरा तो ऑफ ही रहेगा, तुम लोग एक दूसरे को देख लो, है ना? तो यू कैन, और एक ग्रुप में भी हो, दैट इज क्वाइट यूजफुल, कभी डिस्कशन कर सकते हो आपस में, दैट इज कॉल्ड एज द पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा विपांशी? यस सर, पीयर लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर की लर्निंग तो आपकी 1 घंटे 2 घंटे, बट बाकी 22 आवर्स में यू आर लर्निंग विद द पीयर्स। तो आपकी वो आफरीन है लक्ष्मी, यू कैन ऑन योर कैमरा फॉर ए व्हाइल, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, वी विल रिमूव, डोंट वरी, मैं ना हटा दूंगा इसको रिकॉर्डिंग से। You can see, you can talk, you can discuss. All 2 genius scientists here, not including me. Okay, so this is nice, and you must ask a question. जैसे पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक तो होता है कि नॉन इंटरेस्टिंग वे में आप स्लाइड पलट रहे हो, एक दूसरा होता है कि चलो फोन कर लिया एंड देन यू आर डिस्कसिंग ओवर स्टार्ट कैसे हुआ था, मेरा ये छूट गया था, है ना? नहीं भी छूटा था तब भी, है ना? मेकिंग ए स्टोरी लाइक थिंग्स। और फिर आपने पूछ लिया कि क्या था पहला स्टेप, सेकंड स्टेप क्या था, प्रोफाइल कैसे बना था, फोटो प्रोफाइल कैसे बना था, फोटो प्रोफाइल का प्रिकर्सर क्या था, है ना? लॉट ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसलिए आपने देखा होगा कि मैं टेस्ट लेता हूँ बहुत कंसाइज, क्वेश्चन में बनाने लग जाऊँ तो 1000 क्वेश्चन पॉसिबल, है ना? तो एक स्मॉल सैंपलिंग टेस्ट उसको बोलते हैं, दिस इज द टेस्ट, कि आपको एक पलटने का मौका मिल जाए, यू कैन गो थ्रू विद द कॉन्सेप्ट। तो मैग्नीशियम कब इंसर्ट होता है, कैन यू टेल मी? व्हेन द मैग्नीशियम इज इंसर्टेड, बिकॉज प्रोफाइलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नीज, ठीक है? Mg+2 क्लियर? हेलो, क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, मैग्नीशियम कब इंसर्ट हुआ? देखो यहां तक मैग्नीज नहीं था, पबजी में नहीं आया, ठीक है ना? पबजी में तो एक बेस दे दिया, फोरफोबिलिनोजन का, ये फोरफोबिलिनोजन हो गए 4, अभी देख रहे हो, जब ये 4 हो गए पबजी, तब बना प्रोटोपोरफायरिन IX, और ग्लूटामिक एसिड था, फिर आला बना, आला ही कन्वर्ट हो गया, स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन चेंज देख सकते हो, COH SH है ना? फिर यहाँ के COH आ गया, NH2 यहाँ पे है ना? ये CO कन्वर्ट हो गया COH में, बाकी फोल्डिंग होगी, तो फोल्डिंग हो गया, अभी 4 स्ट्रक्चर हो गया। अभी तक देखो मैग्नीज नहीं है, मैग्नीज यहाँ पे आया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोपोरफायरिन X, प्रोटोपोरफायरिन X। अब देखो प्रोटोपोरफायरिन X की मैंने बात ही नहीं करी, X है भी IX है, बोलो ध्यान से देखो, IX है, प्रोटोपोरफायरिन 9 है ना? प्रोटोपोरफायरिन 9 देन कन्वर्ट इनटू द बोलो MVPP, यहाँ पे मैग्नीशियम है, MVP। फिर ये जो फर्दर कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम ओनली बिकॉज ऑफ लाइट, ध्यान रखो, इसको कहते हैं फोटो क्लोरोफिलॉइड ऑक्सीडो रिडक्टेज, फोटो क्लोरोफिलॉइड ऑक्सीडो रिडक्टेज, समझे? तो लाइट किस स्टेज में आई? सेकेंड टू थर्ड स्टेज में। पहला तो बड़ा लंबा था, पहला तो 3 स्टेप का था, चौथे में आपका क्या बन गया? प्रोटोपोरफायरिन IX, प्रोटोपोरफायरिन IX में इंसर्ट हो गया मैग्नीज, मैग्नीज इंसर्टन के बाद ये कह लो ये एक्टिवेट हो रहा है, प्रोटोपोरफायरिन डेड है, ये एक्टिवेटेड नहीं है, नाउ इट्स बिकम एक्टिव बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। अब जब ये हो गया, देन फाइटोल टेल लास्ट स्टेज में ऐड हो गया, एंड देन दिस इज अ कंप्लीट बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ये था नहीं सिलेबस में, लेकिन मुझे लगा कि जरूरी है ये पढ़ा देना चाहिए। अच्छा, एक डिस्कशन हो रहा था कि सुक्रोज के लिए हाउ मच ट्राइओस फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। तो आंसर इज 1/6 ट्राइओस फॉस्फेट
is used for sucrose, while fifth part, 1/6 part, and 5/6 part is used in the regeneration of ribose 1,5 phosphate. So this is the stoichiometry of Kelvin cycle. Kelvin cycle shows that only 1/6 of the triose phosphate is used for the sucrose or starch synthesis. पूरा का पूरा नहीं यूज होता है triose phosphate. Right. So regeneration of ribose 1,5 phosphate is very, very important, which is the precursor of other metabolites. So thermodynamics of photosynthesis कल डिस्कशन हुआ था, मैंने सोचा विपांशी आएगी तो उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ये भी आज, है ना. तो अगर आप देखोगे तो बड़ा दो कैलकुलेशन हमने कर लिया. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हेक्सोज को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो यू विल गेट 2804 किलो जूल, या सॉरी किलो कैलोरी, किलो कैलोरी कन्वर्ट. और लाइट एनर्जी से मिनिमम लाइट एनर्जी रिक्वायर 2016 किलो कैलोरी. कैसे? 6 मोल CO2 चाहिए होता है टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल हेक्सोज. ठीक है, बात समझ रहे हो? और 8 फोटॉन चाहिए. कितना फोटॉन चाहिए? 8 फोटॉन. तो 6 into 8, ठीक है. और 8 फोटॉन, हाँ. और फोटॉन 1 फोटॉन इज इक्वल टू 175 किलो जूल. 8 फोटॉन, ये टोटल अगर कैलकुलेशन करो तो इट विल कम्स अराउंड 8400 किलो जूल, या इसको कन्वर्ट कर दोगे तो आ जाएगा 2016 किलो कैलोरी. तो इतनी तो एनर्जी चाहिए एक हेक्सोज मॉलिक्यूल बनने के लिए. 2016, जैसे 2022 चल रहा था, ये 2016 ऐसे आते, है ना. 2016 जितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन जो एनर्जी यील्ड हो रही है तो 2804 ही हो रही है. माइनस कर दो, डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस कितने का आया? 700 होगा. डिफरेंस कितने का है? 42 नहीं, 6 800 तक कर लो. 9 हो गया, 8 88, 788 का आया. ठीक है, सर 788. हाँ 788 आ गया ना. तो ये हो गया पूरे एनर्जी का 33%, लाइट एनर्जी का 33% ही यूटिलाइज हुआ आपके फोटोसिंथेसिस में. बाकी तो, है ना. सो thermodynamic efficiency of photosynthesis is only 33%, and unused light is lost in the generation of ATP and NADH. तो एक तो पार्ट हो गया 33%, और कितना परसेंट बचा? 77%, 67% बचा ना. ये यूटिलाइज होगा NADH ATP बना. NADPH, not NADH. NADPH 67. and 67. ATP. Okay. Here, John. Right? What is the efficiency of Kelvin cycle? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछ सकते हैं, इसका आंसर बहुत कम लोगों के पास है ना. तो अगर एटीपी एंड ऑक्सीजन अपन एडीपी अगर आप बात करोगे तो टोटल कितनी हो रही है? 1 मोलर 12 एनडीपी. हाँ, ये आपका जो टीसीए साइकिल एक तरह से केल्विन साइकिल से कितनी बन रही है? केल्विन साइकिल गिव राइज टू 12 NADPH और 18 ATP. ठीक है, तो कंजम्पशन कितना हो रहा है? सॉरी, रिक्वायरमेंट फ्रॉम 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लगता है. और ये डायरेक्शन एरो का चेंज करो. इट रिक्वायर्स, मतलब कार्बन फिक्सेशन के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 18 ATP प्लस 12 NADPH. 6 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए इनटू द केल्विन साइकिल, तब बनेगा हेक्सोज. तो केल्विन साइकिल कंजप्शन कितना हुआ?
12 इंटू ये NADPH एनर्जी है 217 किलो कैलोरी, तो 217 हो गया। 217 ये कैलकुलेट कर लेना, फिर आएगा 18 इंटू 29 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल में। तो ये टोटल करोगे तो आ जाएगा 750 किलो कैलोरी या 3126 किलो जूल। इतना तो कंज्यूम होगी एनर्जी एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स कर, ठीक है। अब एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो we can calculate the efficiency of Calvin cycle more directly by computing changes in free energy associated with hydrolysis of ATP and oxidation of NADPH. Okay, so now we are getting this. This is close to 90% efficiency. ठीक है। ये तुम्हें समझ नहीं लगी होगी, अब इतना याद रखो खाली यहाँ पे कि जैसे ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कि 1 मॉलिक्यूल CO2 फिक्स करने के लिए हाउ मच NADPH, हाउ मच ATP इज रिक्वायर्ड, तो ये आपको याद हो गया पहली चीज तो, है ना। तो एफिशिएंसी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो मीन्स केल्विन साइकिल एफिशिएंसी इज क्लोज टू 90%, तो ये याद कर डेटा इनफ, क्योंकि ये तो आपको याद होने से रहा ना, ये पूछेगा। तो हाउ मच एफिशिएंसी इज देयर ऑफ केल्विन साइकिल, अप्रॉक्सीमेट 90%, ठीक है ना। तो 90% का 7% तो लॉस हो गया और 83% स्टोर होते हैं एनर्जी, ठीक है। तो वो भी मतलब 83 के आसपास ही स्टोर होता है। क्लियर। फोटोसिंथेसिस में लाइट ओनली 33% लाइट यूटिलाइज, 67% गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ NADPH ATP। अब NADPH ATP की एनर्जी यूज करके और कार्बन फिक्स होता है, यही बात तो हो रही थी, है ना, कार्बन फिक्स होता है, राइट। क्लियर। यस सर, यस सर, ठीक है। तो इतना मैथमेटिकल में नहीं जाना है, बट अभी आपको इतना 33 से 67 का आइडिया हो गया। 67 NADPH ATP, वो NADPH NADP फिर से इन्वॉल्व हो जाती है कार्बन फिक्सेशन में, तो 90% तो इधर वेस्ट नहीं हुई ना, कंज्यूम हो गई, ठीक है ना, ये कंज्यूम हो गई ना ये तो टोटल 90% मान लो, 90% का 7% तो लॉस, 7% लॉस हुआ और आगे आपका 83%। Now the next question is light dependent enzyme activation regulates the Kelvin cycle. These are the 5 light regulated enzyme, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे कि डिस्कशन में स्टार्टिंग में डिस्कशन बन ली थी रुबीस, तो मैंने सोचा कि अरे ये 4 वाले भी तो लाइट एक्टिवेटेड है ना, जो अभी डिस्कस किया, राइबोजेज 5 फॉस्फेटाइमेज, है ना, सीरियोएक्टिव 1,7 फॉस्फेट, ऑल दे आर लाइट एक्टिवेटेड डिसाइड रुबिस्को के अलावा ये सारे लाइट से एक्टिवेटेड है, ठीक है। हाँ, ये S4 सिस्टम है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने में S4 सिस्टम है। तो आपको याद रखना कि लाइट स्प्लिटिंग ऑकर बिकॉज ऑफ S4 साइकिल। S4 साइकिल किससे बनता है? फेडोक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम। अब ये लाइट आएगी तो फेडोक्सिन एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिस्टम 1 तो फेडोक्सिन, फिर ये इसको थायरोडॉक्टेज इज देयर, फिर ये इसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये टारगेट एंजाइम है, इनएक्टिव को एक्टिव बनाएगा, इसको कहते हैं फेडोक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम। फेडोक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम, फेडोक्सिन ठीक है जी। तो रुबिस्को एक्टिविटी इंक्रीजेज इन लाइट। ऑल अभी चूंकि C3 C4 टाइम में डिस्कस कर चुका हूं,
तो ये थोड़ा इजी हो गया लक्ष्मी के लिए, है ना। तो लक्ष्मी मैं ऑडियो ही रिकॉर्ड करके, ठीक है, वो लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा। एंड देन स्लाइड से जो पिछली स्लाइड है उसको मैंने अरेंज कर दिया है, एंड देन यू कैन गो थ्रू द स्लाइड, टर्न वन बाय वन पेजेस एंड लिसन द ऑडियो। ऑडियो के हिसाब से तुम्हें पता लग जाएगा किस स्लाइड की बात कर रहे हैं, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी। ओके विपांशी, क्लियर? यस सर। ठीक है विपांशी, राइट? यस सर। हाँ, ये लाइट एक्टिव करता है, लेकिन इसके अलावा चार जो बताती हैं वो याद, चार कैसे याद रखोगे? कोई कहानी तो बना लो, ग्लिसरॉल फॉस्फेट GP3 ऐसे कर लो, GP3 G3P एंड देन F16B या FB याद कर लो सीधा, SB SDB ceratolase bisphosphate and then R regulars RBP, है ना। G3P FP SDB RBP, ये चार एक्स्ट्रा है बिसाइड द रिविस्को, ठीक है। तो लाइट से ही एंजाइम एक्टिव होता है जो भी, है ना। यहाँ भी रिविस्को एक्टिविटी इंक्रीजेस लाइट एंड यू कैन सी द मेन inactivity is due to carbamylation, है ना, carbamylation। फिर मैग्नीशियम आता है and then this become active, carbamylation से inactive, right? Carbamylation means addition of CO2, तो carbamylation में COO अटैच हो जाता है, तो फिर मैग्नीशियम ही अटैच करना होता है। तो एक्चुअल में एक्टिव इनएक्टिव पार्ट तो इसको लाइसिन अमोनिया, तो इसको लाइसिन अमोनिया कार्बोक्सिलेशन CO2 आया, कार्बोमाइलेशन। ये कुछ भी पूछ सकते हैं कि एडिशन ऑफ CO2, है ना, इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉल्ड एज एडिशन। CO2 के एडिशन को क्या बोलेंगे? कार्बोमाइलेशन, ठीक है। कार्बामेट MG रिएक्शन है, कार्बोमाइलेशन कार्बामेट MG रिएक्शन। और यहाँ पे जो लाइसिन ग्रुप है ये ईटा लाइसिन, हमेशा लाइसिन देखते ही नोट हो जाना, दिस इज द ईटा लाइसिन, ठीक है, ईटा लाइसिन। तो हाउ रिविस्को इज एक्टिवेटेड? बिकॉज ऑफ कार्बामाइलेशन या कार्बामेट MG रिएक्शन। रिविस्को के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। व्हाट रेगुलेट केल्विन साइकिल, तो कल बताया भी था, आज भी डिस्कशन कर रहे हैं। लाइट डिपेंडेंट आयन मूवमेंट रेगुलेट केल्विन साइकिल एंजाइम, okay. So upon elimination protons are pumped. Proton actually what regulates Kelvin cycle? This is the proton flux, you can see proton flux, ठीक है। तो proton flux into stroma, ठीक है, proton flux into stroma regulate Kelvin cycle, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी? देयर विल बी हाई पीएच, है ना। हाई पीएच होगा कि लो पीएच होगा? टेल मी सर। हाई पीएच होगा, हो सकता है, हाई नहीं, लो होगा सर, लो होगा। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? बता देना मुझे। हाँ सर 10:40। हाँ तभी ठीक है। हम और ये लक्ष्मी तो 11:30 तक पढ़ते हैं, है ना लक्ष्मी, एम आई राइट? यस सर। तो एक्चुअली में डिस्कशन होता था, कुछ पता है, कोई लिमिटेड टाइम नहीं, क्या बेटा? सर 11 तक अगर क्लास हो तो ठीक है, मतलब तब ले सकते पूरा, उसके बाद मेरा थोड़ा वो हो जाता है, और मेरा जाता है, मतलब कंसंट्रेशन थोड़ा तुम्हारा तो ठीक है, मेरा क्या होगा? हो जाता है। मैं भी क्लास लेके आता हूँ। हाँ सर। सोचो बच्चा सोचो। चलो आज यही एंड करते हैं क्योंकि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो।
Okay, sir. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. System problem.